اور تھوڑا سا نا ہرا دھنیا بھی ڈال دے گا اور 2-3 مرچیں سے. قسم خدا کی تیرے چکر میں I love you فاخر, لیکن شادی ابھی تک ہیری لسٹ میں دور دور تک کہیں نہیں ہے. اینی کے, تمہارے, میرے, ہم سب کے بھائی صاحب نے پیسے دیے ہیں ہم سب کی شاپنگ کے لیے. بات اینی ریڈی ہو جاؤ. جی اماں. دیکھا میں نے کہا تھا نا, تم خود ہی سوچو, ہم کے پہلے کبھی ایسے گئے شاپنگ کرنے یا چیزیں مانگنے؟ ارے تو زہید بھائی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر چلے آئے. اماں نے تو ایسا نقشہ کھینچا تھا جیسے ان کا آخری وقت چل رہا ہے. جو منہ میں آتا بولے چلے. اتنی خراب تھے, کتنا فون کیا تمہیں, کتنا بلایا سب نے. ماں کے لیے نہیں آئی لیکن بھائی صاحب کے لیے آ گئی. فہمی ہم وہاں پہ خالی نہیں بیٹھے ہوئے. ہیرو ہے میرا بچہ, ہیرو. چراغ لے کر ڈھونڈیں گی نا تب بھی ایسا لڑکا نہیں ملے گا. اچھا تو شادی کی میں نے پریشان کیا آپ کو؟ ہاں, اس گھر کی پریشانیاں ہیں, وہیں چھوڑ کر آیا کرے. اچھا تم گھر سے آتے تو کھا کے آتے, تانا بھی دے دیا. سچ تانا نہیں مار رہا ہوں میں. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل مائری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فاہر کی والدہ سمینہ جو کہ اب ہار چکی ہے لڑتے لڑتے, مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ اکیلی ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ظہیر صاحب نے پوچھا کہ ناراض ہو, وہ بھی کہہ دیتی ہے ناراضگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی منانے والا ہوتا ہے, مگر مجھے تو کوئی امید نہیں اور نہ ہی کسی سے ناراض ہوں. مگر انہیں دکھ ضرور ہے, وہ فاہر کے لیے کچھ نہیں کر پائی اور نہ ہی اس کے لیے لڑ سکی ہے, اور مجبوراً اسے اپنے بیٹے کو ہی سمجھانا پڑا ہے کہ وہ بس جیسے کیسے کر کے شادی کے لیے راضی ہو جائے, کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ادھر حبیب جو کہ شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے, اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لے کر گیا تھا, مگر ایسے میں اس کی دوسری بیوی بھی تو ہے. حبیب جب اس کے پاس نہ آیا, وہ تو سیدھا اس کے گھر چلی آتی ہے. ظہیر صاحب نے بتایا کہ حبیب گھر پر نہیں ہے, مگر وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایسے کیسے گھر پر نہیں ہے, جب آفس نہیں ہے تو یہاں پر ہی ہوگا نا. اور تبھی حبیب لوٹ آتا ہے اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو. عائشہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے, مگر اس سب کے درمیان انہی اور فاہر کی شادی ہے جو اب تو بس ہو کر ہی رہے گی, اور بالآخر بڑی زبردستی ان دونوں کا رشتہ جوڑ دیں گے, اور تبھی ان کو اپنے کی وجہ سے بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل مائری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فاہر کی والدہ سمینہ جو کہ اب ہار چکی ہے لڑتے لڑتے, مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ اکیلی ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ظہیر صاحب نے پوچھا کہ ناراض ہو, وہ بھی کہہ دیتی ہے ناراضگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی منانے والا ہوتا ہے, مگر مجھے تو کوئی امید نہیں اور نہ ہی کسی سے ناراض ہوں. مگر انہیں دکھ ضرور ہے, وہ فاہر کے لیے کچھ نہیں کر پائی اور نہ ہی اس کے لیے لڑ سکی ہے, اور مجبوراً اسے اپنے بیٹے کو ہی سمجھانا پڑا ہے کہ وہ بس جیسے کیسے کر کے شادی کے لیے راضی ہو جائے, کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ادھر حبیب جو کہ شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے, اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لے کر گیا تھا, مگر ایسے میں اس کی دوسری بیوی بھی تو ہے. حبیب جب اس کے پاس نہ آیا, وہ تو سیدھا اس کے گھر چلی آتی ہے. ظہیر صاحب نے بتایا کہ حبیب گھر پر نہیں ہے, مگر وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایسے کیسے گھر پر نہیں ہے, جب آفس نہیں ہے تو یہاں پر ہی ہوگا نا. اور تبھی حبیب لوٹ آتا ہے اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو. عائشہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے, مگر اس سب کے درمیان انہی اور فاہر کی شادی ہے جو اب تو بس ہو کر ہی رہے گی, اور بالآخر بڑی زبردستی ان دونوں کا رشتہ جوڑ دیں گے, اور تبھی ان کو اپنے کی وجہ سے بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل مائری کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فاہر کی والدہ سمینہ جو کہ اب ہار چکی ہے لڑتے لڑتے, مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ اکیلی ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ظہیر صاحب نے پوچھا کہ ناراض ہو, وہ بھی کہہ دیتی ہے ناراضگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی منانے والا ہوتا ہے, مگر مجھے تو کوئی امید نہیں اور نہ ہی کسی سے ناراض ہوں. مگر انہیں دکھ ضرور ہے, وہ فاہر کے لیے کچھ نہیں کر پائی اور نہ ہی اس کے لیے لڑ سکی ہے, اور مجبوراً اسے اپنے بیٹے کو ہی سمجھانا پڑا ہے کہ وہ بس جیسے کیسے کر کے شادی کے لیے راضی ہو جائے, کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ادھر حبیب جو کہ شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے, اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لے کر گیا تھا, مگر ایسے میں اس کی دوسری بیوی بھی تو ہے. حبیب جب اس کے پاس نہ آیا, وہ تو سیدھا اس کے گھر چلی آتی ہے. ظہیر صاحب نے بتایا کہ حبیب گھر پر نہیں ہے, مگر وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایسے کیسے گھر پر نہیں ہے, جب آفس نہیں ہے تو یہاں پر ہی ہوگا نا. اور تبھی
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर हबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर हबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर हबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर हबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए कर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए कर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इनी और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी
हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर की वालदा समीना जो कि अब हार चुकी है लड़ते लड़ते, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अकेली है और कुछ भी नहीं कर पा रही। ज़हीर साहब ने पूछा कि नाराज़ हो, वो भी कह देती है नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई मनाने वाला होता है, मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ना ही किसी से नाराज़ हूँ। मगर इन्हें दुख ज़रूर है, वो फाहिर के लिए कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके लिए लड़ सकी है और मजबूरन इसे अपने बेटे को ही समझाना पड़ा है कि वो बस जैसे कैसे करके शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर खबीब जो कि शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ है, अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, मगर ऐसे में इसकी दूसरी बीवी भी तो है। हबीब जब इसके पास ना आया, वो तो सीधा इसके घर चली आती है। ज़हीर साहब ने बताया कि हबीब घर पर नहीं है, मगर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। ऐसे कैसे घर पर नहीं है, जब ऑफिस नहीं है तो यहाँ पर ही होगा ना। और तभी हबीब लौट आता है और इसे देखकर परेशान हो गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आयशा भी इसे देखकर परेशान हो जाती है, मगर इस सब के दरमियान इन्हीं और फाहिर की शादी है जो अब तो बस होकर ही रहेगी और बलाखिर बड़े ज़बरदस्ती इन दोनों का रिश्ता जोड़ देंगे और तभी इनको अपने की वजह से बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा।